ध्यान से बेटा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा कम होगा बेटा, कम होगा इसका मतलब बेटा लेस, उसका कंसिस्टेंसी बेटा यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा एंड consistency. And what kind of relation it is बेटा, कि coefficient of variation and बेटा consistency, they are inversely proportional to each other बेटा। क्या रिलेशन बोला मैंने बेटा? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बेटा। इसका मतलब बेटा मोर विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो लेस विल बी द कंसिस्टेंसी। लेस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मोर विल बी द कंसिस्टेंसी। तो चलो बच्चा लोग मुझे बताओ, हम लोग को बड़ा किसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? इन मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि इन लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सभी हो बराबर ध्यान से सुन बड़ा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होना चाहिए? मोर और लेस। सभी हो? यस करेक्ट बड़ा, द आंसर जो है बड़ा ऑलवेज बड़ा इट शुड बी लेस, because less will be the coefficient of variation, more will be the consistency. So next line bro, in your margin you should write down bro, note. You should write down the note bro. And in that case, write down a coefficient of variation is used to determine is used to determine bro, consistency is used to determine bro, consistency bro, of of the given distribution bro, consistency bro, of the given distribution bro. In the bracket but you can write down the meaning bro. The meaning of the word but consistency means it is reliability bro, reliability bro, or stability bro, or stability bro. Either you can use bro, the word reliability or you can use the word stability bro. And further but you can add one more thing, the less is the coefficient of variation bro. Less is the coefficient of variation, then more is the consistency bro. Then more is the consistency bro. चलो bro. उसके बाद नेक्स्ट, एवरीवन नोज bro कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज
the measures of dispersion which can undergo for the further mathematical treatment. तो आज बड़ा वो टाइम आ गया है कि we have to study about the relation between a standard deviation and variance. So you can write down the heading as well. Relation between relation between standard deviation between standard deviation and and variance. Okay, relation between standard deviation and variance. चलो सब लोग रेडी हो नेक्स्ट टाइम by leaving but a two finger space by leaving but a two finger space write down variance write down variance is defined to be as variance is defined to be as the square of standard deviation. Variance is defined to be as the square of standard deviation. Variance is defined to be as the square of standard deviation. Full stop. Continued. In other words, in other words, it is given by in other words, it is given by it is given by comma next line comma next line it is given by it is given by where of a standard deviation is where of a standard deviation is equal to variance. The square of standard deviation is equal to variance. Therefore, here, therefore, standard deviation is considered to be as the root of variance. अच्छा बड़ा कितने मैथ स्टूडेंट्स को बड़ा ये फॉर्मूला याद था? 12th में ये फॉर्मूला बड़ा पढ़ाया गया था। ऊपर सर ने बड़ा तुम लोग को कोरिलेशन रिग्रेशन में ये चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ाया था। कितने स्टूडेंट्स को बड़ा याद था ये रिलेशन? चलो बड़ा वेरी गुड।
So you can put this bit of formula in box. Very, very important. Bro. The square of standard deviation bro, is equal to variance. Bro. Standard deviation is the positive square root of variance. Bro. Positive square root of variance. Bro. Symbolically, bro, symbolically, if I want to write this bro, relation in terms of bro, symbols, bro, symbols, I can write the same thing as I can write the same thing as sigma square is equal to variance. Sigma square is equal to variance table. Therefore, sigma is equal to root of variance. Sigma is equal to root of variance. मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा? It is all exactly one or the same. It's all exactly one or the same. ये मैंने जो फॉर्मूला बताया बेटा तुम लोग को वो सिंबॉलिकली फॉर्मूला बताया. चलो नेक्स्ट. ये हो गया बेटा रिलेशन. एंड आफ्टर दिस now we are going to start with the some additional formulas. Some additional formulas. ये जो फॉर्मूलाज पढ़े बड़े ये तो तुम लोग को लर्न करने ही करने बड़े. बट अपार्ट फ्रॉम दिस you have to remember these formulas also. So write down the heading to be as well. Some additional formulas. Some additional formulas. Some additional formulas means they are going to be the shortcut. समझ में है सब लोगों को? They are going to be the shortcuts. Whenever it is possible, you can make the use of these shortcuts and you can start with the sums easily. You can solve the sums easily. So when you will start with a if x is a variate, if x is a variable taking the values of taking the values of n consecutive natural numbers, taking the values of n consecutive natural numbers, n consecutive natural numbers. That is a that is
X is a variate taking the values like 1, 2, 3, पढ़ाई dot के dot लिए dot. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Dot dot dot. And X is a variate taking the values like 1, 2, 3, dot dot dot. N. Then formula for arithmetic mean. Formula for arithmetic mean. Arithmetic mean. AM. In bracket, but I will write down X bar, which is equal to N plus 1 upon 2. N plus 1 upon 2. चलो, अब सब लोग बड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ बड़ा रेडी रहो। बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर बड़ा। अब मैं देखो तुम लोग को ये बताऊंगा सब। सपोज बड़ा x इज अ वेरिएट। मान लो बड़ा x इज अ वेरिएट taking the values like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बराबर। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे देखो जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ना बेटा उसके ऊपर ध्यान दो सब लोग। तो मुझे बताओ बेटा फटाफट कि गिवन डेटा इज अ विच टाइप ऑफ डेटा। गिवन डेटा बेटा इज अ रॉ डेटा। बराबर। तो सबसे पहले बेटा जब तुम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करने की ट्राई करोगे तो वही अपने पुराने फॉर्मूला से ट्राई करोगे बेटा। इट इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन कर टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस फटाफट कर 10। आंसर देख 55 आया होगा। 55 डिवाइडेड बाय 10 द आंसर इज 5.5 आया होगा। चेक कर पागल में कुछ भी फेंक रहा हो। तुम लोग सब लोग चेक करो कि जब तुम लोग ने ये जब सम फाइंड किया बेटा सम तो उसका आंसर तुम लोग को 55 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेटा 10 5.5 आंसर आया था। अब ये देख बेटा ये देख कहाँ तुम्हारा बेटा ये पुराना बाबा आलम के जमाने का मेथड और ये देख कहाँ मेरा ये देख लेटेस्ट नया मेथड ये देख लेटेस्ट अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो बेटा मुझे बोल व्हाट इज n। n कौन है बेटा फटाफट बोल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है बोल। चल बच्चा बोल 10 10 प्लस 1 अपॉन 2। अरे फटाफट कर फटाफट डोंट वेट। अब ये देख मेरा मेथड देख मेरा मेथड देख। बच्चा खुश हुआ। हाँ 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 बच्चा खुश हो गया वाह है कि नहीं।
चल ये तो ठीक है कि मैं भला इंसान हूँ बड़ा, इसलिए मैंने सिर्फ वहां पे 10 ऑब्जर्वेशन दिए थे। सपोज अगर मैं 1 to 100 देता, 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाता, ये देख, 1 2 3 डॉट 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 100। तो गिवन डेटा बड़ा, इट वुड बी अ रॉ डेटा। अब ऐसे रॉ डेटा में क्या तुम लोग सब लोग बड़ा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा 100 करते बेटा? पागल हो जाता तुम लोग। उसका टोटल आता 5050 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंसर 50.5 आता। कितना टाइम वेस्ट होता? कहा तुम्हारा ये बाबा आलम के जमाने का मेथड और कहा मेरा नया लेटेस्ट मेथड देख। अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू n+1/2। बच्चा खुश हुआ कि नहीं? बच्चा खुश हुआ कि नहीं? चल भाई, सब लोग को अच्छा लगा ये? सब लोग को बड़ा अच्छा लगा? ये फॉर्मूला सब लोग को अच्छा लगा बड़ा? अच्छा लगा तो अपने पास रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा। बट मान लो कि कोई बच्चा बड़ा जीत करे, रोने लगे और कहने लगे नहीं सर नहीं, मुझे ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा बड़ा। तो वो रोते हुए बच्चे को हम लोग चुप कर सकते हैं, भाई मत रो मत रो, है ना? मैं तुम लोग को बड़ा दूसरा फॉर्मूला दूंगा, मत रो मत रो। तो इन दैट केस द alternate formula for that is, ये देखो, ये arithmetic mean x bar is equal to, x bar is equal to, देखो, it is the lowest value plus highest value, lowest value plus highest value divided by 2, divided by 2। चल ले भाई कोई भी फॉर्मूला यूज कर, कोई भी का मतलब कोई भी, आंसर इज गोइंग टू कम एग्जैक्टली वन और द सेम। मैं क्या बोला सबको समझा? अब ले, सेम एग्जांपल ले, चल सेम एग्जांपल ले। फॉर 1 to 10 ऑब्जर्वेशन, व्हिच इज द लोएस्ट वैल्यू, व्हिच इज द हाईएस्ट वैल्यू? 10, बराबर है कि नहीं? चल यही वैल्यू को बड़ा सब्स्टिट्यूट कर, 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2। बच्चा आंसर बोल, बच्चा आंसर बोल। जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया तो उससे आंसर क्या था? और तुम लोग ने जो बड़े तुम्हारे बाबा आलम के जमाने के मेथड से जो आंसर लाया था उसका भी आंसर क्या था? सेम आंसर आया कि नहीं? बच्चा देख, सेम आंसर आया है कि नहीं? चल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 to 100 ले, 1 to 100।
चल बता 1 to 100 में बड़ा लोएस्ट वैल्यू कौन है? लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? लार्जेस्ट। बच्चा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। चेक किया तुम लोग के बड़ा आंसर सेम आया सब लोग को? चलो बड़ा नेक्स्ट। ये था हुआ फॉर्मूला बड़ा विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन। चल ठीक है, खुश हो जा। तुम लोग भी क्या याद रखेगा बड़ा? स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू the whole root of whole root of n square minus 1 upon 12। उसी के अंदर बच्चा, उसी के अंदर चेक कर फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज द होल रूट ऑफ whole root of minus 1 upon 12। चल भाई एकदम इजी ले, एकदम इजी। पहले दो फॉर्मूलाज में बड़ा मैंने तुम लोग को चॉइस दिया था कि तुम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर अरिथमेटिक मीन के लिए, आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम। स्टैंडर्ड डिविएशन में बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक फॉर्मूला है जिससे तुम लोग को सम सॉल्व करना है बड़ा। समझ में आया सब लोग को? हर टाइम बड़ा वेरीफाई करके नहीं बता सकता हूं मैं, है ना, बट तुम लोग घर पे जाके चेक करके देखना बड़ा कि आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम, और एग्जाम में तुम्हारा जो टाइम है बड़ा वो भी सेव हो जाएगा बड़ा वहां पे। तुम लोग को मैंने वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बताया था, याद है? जिसमें से बेटा मैंने बोला था कि यू विल बी सॉल्विंग द सम बाय यूजिंग द सिंप्लीफाइड फॉर्म।
बट वो भी यूज न करते हुए बड़ा, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। और मुझे पता है कि अब ये फॉर्मूलाज देखने के बाद बेटा तुम लोग का सबका दिल बेटा ये फॉर्मूलाज की ओर आ गया है, तुम्हें ये फॉर्मूलाज बड़ा अच्छे लगने लगे। सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब हम लोग यही फॉर्मूलाज यूज करके सम सॉल्व करेंगे। सोच रहे हैं तुम लोग सब लोग? सर ने खाली भी ली हम लोग को ये सब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज पढ़ाए थे सब, ऐसा सोच रहे हैं बेटा तुम लोग? अगर ऐसा सोच रहा है तो बड़ा बहुत गलत सोच रहा है बेटा। ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज है बेटा, ये फॉर्मूलाज हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते बेटा। ये फॉर्मूलाज हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते बेटा। ये फॉर्मूलाज सिर्फ और सिर्फ बेटा तभी यूज हो सकते हैं जब तुम्हारे पास जो वैल्यूज है